I'm your host, your dost, Nausheen Yaqub, founder of Orishas Global Consulting. Are here waiting from the storyteller himself, and I've learnt a lot from his stories. Without further ado, I'm giving out the name of that man. A very warm welcome once again into Unfiltered Baatein, powered by Infoban. Today's episode is an amalgamation of stories, and I believe that everyone would be intrigued to know what stories we have in our kitty today. We're going to talk about second chances in life, and I believe we all should get a second chance in life, not just to prove ourselves, but to live life once again, to live ourselves once again. If there are any disappointments, any unfinished business that you have in life, you get a second chance to either complete it, relive it, or rediscover yourself through your story. And one such story, or I would say a few such stories, are here waiting from the storyteller himself. I think he's one of the best storytellers I have come across in many years now. And I've learned a lot from his stories. Without further ado, I'm giving out the name of that man, Syed Manazir Abbas, founder of Infoban. It's a digital marketing company here in Dubai, very well established, and so is the man himself. Let's hear it from Manazir about his early life, about vulnerabilities, about some leadership lessons that he can leave us with, and about the challenges and about second chances that he had to start over and over again in life. Welcome to our podcast, Mr. Manazir. Thank you, Nausheen. Thank you. Your choice of words are so excellent that for a moment I started thinking you're talking about somebody else. It's an honor for me to be here with you. Thank you very much for giving us your time and sharing yourself with us. And I hope it's going to be authentic as you are with your colleagues, with your friends, with new acquaintances as well. So let's begin. Yeah. At times I'll tell lie also. Normally in one day I tell two lies. But that two lies are already spoken. So you'll get only truth from me now. Ah, great. So the quota of the lies is finished, so, right? For today it's finished now. Yeah. Good. So should I say that I'm blessed to know the truth? Or the meat of the story? Not you. In fact, your millions of audience will also listen to the same thing. Absolutely. And we are waiting patiently for that. Let's begin. So early life, where did it start from? What's your origin? Who is Manazir really? Oh, who is Manazir? Even I'm trying to find out who is Manazir. Even I do not know who am I, but my friends call me Manazir. This we used to say when we were teenagers when they school, you know. No, Manazir is come from a very humble background of Allahabad, Prayagraj, which is a mystic town. And my grandfather was a very big landlord there, zamindars. So my father had that inherited himself. So he was zamindar and he lived very lavishly. But he was very visionary, I'll say. With the pace of time, he saw that the zamindari abolition is coming. So he jumped into a job and he took a job in railways. So he worked in railways as a superintendent. Okay. So he has seen that shift. Right. From a zamindari time. From luxury to... Yes, from zamindari time to working for someone. Right. And then what I'll say, the best thing what he has given was an education. Okay. As I mentioned earlier also कि हम लोगों ने मुफलिसी तो नहीं देखी पर गरीबी देखी एक हद तक थोड़ा सा. क्या difference है दोनों में? I mean, it's very interesting what you said. Muflisi is below the poverty line. Right.
और ऐसा होता था कि जब तनख्वाह आती थी तो हम लोग सब हिस्से बंधे होते कि इतना राशन वाले को जानना है, इतने माशरे में खर्चा होना है, दूसरी चीज़ों में वो सब लिमिट होता था. लेकिन आई वॉज वेरी लकी एक्चुअली. आई वॉज ऑलवेज बीन वेरी लकी. लकी इन द सेंस ये था मैं सबसे घर में सबसे छोटा था. तो बाय द टाइम आई स्टार्टेड बीइंग एडल्ट और लिटिल बिट जहाँ से मुझे होश आने लगा चीज़ों का, तब तक मेरे भाई लोग नौकरी करने लगे या उस लेवल पे पहुंच गए थे, तो अब्बा का हाथ बढ़ गया. सो मैंने वो चीज़ तो इतनी ज़्यादा नहीं देखी. इनफैक्ट अगर देखें तो उस जगह पे मैं लग्जरी में रहा हूँ. तो ये रहा है मेरा. और पढ़ाई मेरी वहाँ पे इलाहाबाद में सेंट जोसेफ कॉलेज से हुई है. मैंने 10th तक सेंट जोसेफ कॉलेज में किया. 11th 12th मेरा बिशप जॉनसन में हुआ. और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ का मतलब प्राउड टू से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं एक छात्र रहा हूँ, स्टूडेंट प्रोडक्ट रहा हूँ, जहाँ से बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा है. तो खैर वो इलाहाबाद की हवा की बात ही अलग है. वो अजीब है यार. एक मलंग, एक बेखौफ, एक खुश मिजाजी. टेंशन तो है ही नहीं वहाँ पे. टेंशन भी है तो आदमी बैठा है, बैठो यार कुछ नहीं, चाय पियो, हो जाए सब सही. अमेजिंग. वो ख़त्म हो जाता है वहाँ, टेंशन ख़त्म हो जाता है. तो वहाँ से हमने किया. फिर मास्टर्स करने के लिए मैं बॉम्बे आई. स्टार्टेड बॉम्बे मैंने सेल्स और मार्केटिंग में किया MBA. एंड आई वाज वेरी लकी टू गेट अ जॉब विद यूनिलीवर. आई स्टार्टेड माय करियर. माय फर्स्ट जॉब वाज विद यूनिलीवर. One of the top brands. Oh yes, that's an institute. True. That's an institute. But I was very like, it was very small period which I stayed there, because the grass always looked greener at the other end. So I thought, let me come to Dubai. And I moved to Dubai. और आज शाम को 10:30 बजे रात में मेरी फ्लाइट उतरी थी दुबई में. आज एक दिन एग्जैक्टली 25 साल पहले. Wow. Amazing. So when I came in Dubai, I was a little boy. Now I've become a man now. And what's more to come? I do not know. I do not know. Share some, interesting. Thank you so much for giving us a sneak peek into your early life, into your teen life, and then growing up and going into different genres of education, working with top brands. Any learnings you would like to share, or any such story you would like to share of challenge or a second chance? नहीं, बहुत सी हैं और बहुत सी स्टोरीज होती हैं सेकंड चांस की. कुछ अनकही होती हैं, कुछ कही होती हैं, किसी का क्लोजर नहीं होता. तो एक आध नहीं कही है. एक मैं स्टोरी आपको शेयर करूंगा, शायद वहाँ से कहानी निकले. इट वाज इन माय ग्रेड 12th. आई वाज नॉट वेरी गुड स्टूडेंट. आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट. तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त होता था समीर होता क्या अभी भी है दोस्त, समीर खोकर. ही वाज वेरी गुड इन न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई वाज रियली बैड इन नंबर्स. एंड तो मैंने उससे कहा कि यार मैं थियोरेटिकल याद कर लेता हूँ, तू न्यूमेरिकल याद कर ले, और दोनों बराबर 40-40 मार्क्स का आता है, और हम लोग बाद में शेयर कर लेंगे वहाँ पे. तो उसका रोल नंबर 72 था, मेरा रोल नंबर 73 था. तो एग्जाम कन्वीनियंट था. तो आगे पीछे बैठना था. तो यही हुआ, हम लोगों ने तय किया और हम खूब चौड़ों का सोए मस्त होकर के, और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देने गए. तो जैसे रूम में गए तो वहाँ पे लिखा था रोल नंबर 1 to 72, यहाँ पर 73 से दूसरे रूम पे. अब कहते हैं जो उसकी मुहावरा, उस वक्त मुहावरा समझ में आए, काटो तो खून काटो तो खून नहीं. अब कि भाई अब क्या करें. तो खैर एनीवे, तो जहन तो वो हो चुका था. बहरहाल केमिस्ट्री का पेपर आया, वो आखिरी पेपर था जी. वो पेपर देखा, उससे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या मैं. प्लानिंग तो कुछ और थी प्लानिंग. वो पढ़ाई जो पढ़ के गए थे वो भी नहीं याद. राइट. खैर तो हम जाने लगे कि हम पेपर छोड़ देते, नहीं करेंगे. तो मेरे बगल में एक लड़की थी, वंदना, मेरी बैचमेट थी, क्लासमेट थी, बैचमेट की मेरी क्लासमेट थी. उसने कहा बैठो. तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे. ओके. और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था जो इंटरनल होता था. 20 में से नॉर्मली इंटरनल होता था 17-18 नंबर मिल जाता था. तो ये वो 17-18 तो मिल गया, 23 नंबर और चाहिए. शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट. तो वन वर्ड्स होते थे, तो उसने सारे ने मुझे लिख के दिया, मैंने नकल कर ली. Okay, and you're saying it on roll. हाँ, जो किया गलती से निपटा लेंगे. Appreciate your honesty. नकल किया. उस बंदी ने मुझे बेचारी नकल करवाया बिना ये सोचे कि उसके मार्क्स कम होंगे या जो भी हो. और मैंने नकल किया. और फिर उस वक्त जो होता है ना,
बचपने का जोश अलग होता है। बिल्कुल। तो वो आखिरी पेपर तो बाहर निकले कि हम लोग चलो घूमने चलते हैं, दोस्तों के साथ हा हू होने लगा, घूमने गए सब लाइन्स, और बात वहाँ से ख़त्म भी। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद गर्मी छुट्टियाँ चालू हो जाती हैं, छुट्टियाँ हो गई, रिजल्ट आया, रिजल्ट देखने गए, और मैं कभी वंदना से मिल नहीं पाया। आई वॉज नेवर एबल टू से थैंक्स टू हर। वो कहाँ है, किस दुनिया में है। कई उसकी जो फ्रेंड्स थी, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ कनेक्ट में थी 2 साल पहले, 4 साल पहले, शी हैज़ मूव टू US। तो गूगल देख डाला, सारे सोशल मीडिया देख डाले, पर आई कुड नॉट फाइंड हर डिजिटल फुटप्रिंट की जहाँ से मैं उसको कर सकूँ। तो एक क्लोजर नहीं होता ना, तो एक तकलीफ देता रहता है कहीं ना कहीं। राइट। डू यू रिग्रेट एनी पार्ट ऑफ दैट? रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कसक है यार कि शायद वो क्लोज नहीं हो रहा है ना, क्लोजर नहीं हुआ। रिग्रेट की बात है तो मैं रिग्रेट से बचा जरूर हूँ। एक I'll tell you a story। मैं और मेरे अब्बा बहुत क्लोज हैं, हम लोग क्लोज थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो हमसे डेली बात करते थे शाम को, डेली का मतलब डेली ऑनलाइन बात करते थे। पहले एक ज़माने में वो याहू मैसेंजर हुआ करता था, फिर सारी चीज़ें बदलती चली गई, तो फिर बॉटिम हो गया, और फिर क्या क्या चीज़ें आ गई, सब बात करते रहे। तो बेचारे वो इंतज़ार करते थे, उनके पास कोई काम तो था नहीं, तो वो इंतज़ार करते थे शाम को कि मैं घर आऊँगा तो मुझसे वो बात करेंगे। और कभी कदार होता है कि बहुत थके मांदे रहते हैं, स्ट्रेस रहता है काम का, किसी चीज़ का, कभी मूड नहीं करता बात करने का। बिल्कुल। You're there but you're not there. You're not there. You don't want to talk. I feel like यार ये फिर क्या क्योंकि हम लोग उसके अगले लम्हे के बारे में सोचते नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक दिन हुआ कि उन्होंने रात में मुझे कॉल किया, और मैं शायद लेट गया था, और कॉल पे कॉल करते चले जाते थे। तो खैर मैंने उसको घर गए तो हमने अपनी वाइफ से कहा कि यार आज तुम बात कर लो, मेरा बिल्कुल बात करने का दिल नहीं है यार, आई एम टू टायर्ड। शी सेड फाइन। तो उसने खैर अब्बा से बात करना स्टार्ट किया। 5 मिनट बाद वो हमारे पास आई, उसने कहा बात कर लो, अब्बा से बात कर लो। So she was the one who pushed you. तो उन्होंने कहा बात कर लो, हमने कहा ठीक है। तो देन आई स्पोक टू अब्बा। वही नॉर्मल चीज़ होती थी। आप जब डेली बात करें बस कितना कंटेंट होगा। बिल्कुल। हमारे अब्बा बताते थे आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कहते थे मेरा गोला बारूद खत्म हो गया, बट आप तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। More of listening and less of talking, right? तो अक्सर तो ये होता था कि हम लोग एक दूसरे को खाली देख रहे हैं ऐसे बैठ करके, बिना बात करे, खाली एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ बात ही नहीं है। तो खैर तो उस दिन हमारे बेगम ने कहा नहीं बात कर लो अब्बा से, एंड मैंने उनकी बात मानी। अब मैं शुक्रगुजार हूँ उसका कि उन्होंने मुझे ये राय दी, एक अच्छी राय दी, और हमने अब्बा से बात किया। और उस दिन रात में 9 बजे रहा होगा, जब बात करके हमने ख़त्म किया, और उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठे, और 10:30 बजे करीब फ़ोन आया इंडिया से भाई का कि अब्बा को स्ट्रोक हो गया है। तो दैट वाज द लास्ट टाइम आई स्पोक टू हिम। अगर शायद मैंने उस दिन बात नहीं किया होता तो आज तक मैं अपने आप को उस गिल्ट से बाहर नहीं निकाल पाता, और वो रिग्रेट रहता। तो रिग्रेट तो नहीं है। तो हाँ, वंदना वाली जहाँ तक बात है वो कसक है। मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। एक हमारे दोस्त हैं, अब क्योंकि हम लोगों ने दुबई की बात की, दोस्त क्या हैं, बड़े भाई जैसे थे, बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड। माशाल्लाह ही रन्स अ वेरी सक्सेसफुल चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हियर। वंडरफुल। तो वही इंस्ट्रूमेंटल थे मुझे दुबई लाने में। अच्छा। तो जब हम आए थे 5-6 महीने उन्हीं के घर में थे, सारी चीज़ें थी। और फिर जब हम ग्रो करने लगे तो वो भी बहुत खुश हुए सारी चीज़ें। तो शुरू के 10-12 साल तो हम लोग कैसे गुजरे हैं कि अगर हम लोग दिन में 2 या 3 बार बात नहीं करते थे तो लगता था कुछ हुआ नहीं है। शाम को मिलना है, बैठना ही वीकेंड उन्हीं के यहाँ जाना है साथ में। तो सारी दिल की बात, हाँ, एक अच्छा रिश्ता था। और हम लोगों ने खूब बिजनेसेस किए हैं, ख्याली पुलाव जो कहते हैं ना, इजिप्ट, जॉर्डन, अमेरिका, कोई ऐसी कंट्री नहीं हुई जहाँ हम लोगों ने बिजनेस नहीं किया ज़हनी तौर से पेपर में। फिर उनके यहाँ एक नया फर्द शामिल हुआ उनकी फैमिली में, एंड आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, ही स्टार्टेड अवॉइडिंग मी all of a sudden he started avoiding me। उस बंदे, या तो पहले वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते थे इसलिए मुझे ढूंढ रहे थे, अब उनके पास कोई आ गया या मुझसे कोई गलती हो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उनसे जाके बात की, एक बार नहीं 2-3 बार बात करनी चाहिए कि आपके रवैये में, आपके इखलास में बहुत चेंज पा रहा हूँ, क्या वजह है, यू आर अवॉइडिंग मी नाउ।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्यों तुम्हें कुछ लगता है? हमने कहा यार मुझसे उगलवाओ नहीं, वी हैव दैट रिलेशन, इफ यू फील दैट प्लीज टेल मी। Right. बहुत सी चीज़ें होती हैं आप नोइंगली अननोइंगली कर लेते हो। मैं तो नहीं कहता मैं फरिश्ता हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकता, मुझसे गलती भी हो, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है मैंने कहीं उनका दिल दुखाया, मैंने उनके पास गया और उनके सामने हाथ भी जोड़े कि भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती हो, मुझे मालूम नहीं है। बट ही सेड नो। How did that make you feel? Confused. Sometimes I feel sorry for him also. He lost a very good friend. Of course. That's the right attitude. Yeah, He's he lost. he lost a very good friend. Right. We were always there for each other. और मतलब अगर मैं भी कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे होता था भाई है, उजर भाई बैठे हुए हैं घर पे, दुबई में है, Right. ही इज देयर। ठीक है, बट ठीक है, वो एक तसल्ली सी होती है, you know, you feel कोई secure, कोई you है, feel- कोई देयर, somebody is there Exactly. for you. Belonging. हाँ तो है। कभी बात हुई उनसे उसके बाद में? एक दो बार बात हुई। Is it the same attitude? हाँ still? वो थे, इट वाज द सेम। तो वो दैट वार्मथ वाज नॉट देयर। कभी होता था कि एक दिन में हम लोग 3 बार कॉल करते थे साथ में, बिना हाय हेलो बोले जाते नहीं थे। अब तो ये होता है वो दुबई आते हैं, 15 दिन रहते हैं और बिना बताए चले जाते हैं। Right. तो बाद में सुनने में आता है कि भाई आए थे यहाँ पे, 15 दिन थे, 20 दिन थे, चले गए। खैर ठीक है, दैट्स अ डिमांड, ये जिंदगी ऐसी चलती है। And obviously, I don't think you should hold yourself accountable or responsible in any way. Not for that. not now. But there was a time when you did. Yeah, I thought कि maybe I have done something wrong. You started to question Yeah. yourself. I went to him, I spoke to him, and in fact, once I was emotionally broke in front of him. I started crying. कि भाई वजह क्या बता तो दो यार। He said no. फिर मुझे लगा कि अब मैं अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा गिरा रहा हूँ किसी के लिए, इतना भी नहीं गिराना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहे, इम्पोर्टेंस देना चाहे, वैल्यू देना चाहे, तो वो किसी भी सिचुएशन में दे सकता है, राइट? और अगर ना चाहे तो चाहे उनके पास 1000 मौके हों, it's not going to happen. So I'm glad that you learned a valuable lesson through your own experience with him, and you were able to let go of that feeling. पर खलिश अभी भी है। खलिश ये कि वजह क्या है, क्यों? रीजन क्यों, Right. आखिर क्यों, वो शायद मालूम चल जाए तो बात खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मालूम चलता तो ये सब बातें होती रही। तो हमको एक बार एहसास हुआ, कुछ दिन मैंने पहले पोस्ट भी लिखा था लिंक्डइन पे। I read it and it was interesting. वंदना के बारे में, वंदना शायद के बारे आपने में लिखा मैंने लिखा था। फिर मैंने भी एक रिसेंटली एक पोस्ट और लिखा कि हमारे घर की सफाई जैसे हो रही थी तो वी वाज चेंजिंग द फर्नीचर्स। था। राइट। ठीक है, सारे फर्नीचर्स मैंने देख लिए, एक नीचे का जो शेल्फ था वो मैंने देखा नहीं, अच्छा। और मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। Right. और नया बिना देखे। बिना देखे अज्यूम किया कि मैंने देख लिया या मेरे बेटे ने देख लिया है, राइट। और उसको हमने निकाल दिया। और जो बंदा फर्नीचर लेकर आया था उसी को हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, भाई इसको फेंक देना कहीं। राइट। ठीक है, वो बंदा लेके चला गया। बाद में एहसास हुआ कि उसके नीचे जो थी मेरी पुरानी सारी फोटोग्राफ्स उसके अंदर रखी थी। ट्रेजर ट्रोव। पूरी चीज सब चली गई। मैंने उसको कॉल किया, 1 हफ्ते बाद मैंने कॉल किया, उसने कहा भाई मुझे याद भी नहीं, मैंने तो कब डाल दिया ये वो। तो एहसास हुआ कि कभी कभी जो हमारे पास जो चीजें ट्रेजर होती हैं उसकी हम लोग वैल्यू करते ही नहीं करते, कदर नहीं करते। जो सामने होती है उसको देखते हैं, नई चीजों को देखते हैं। बिल्कुल। तो उसी चीज में हमने कहा यार मैं अपने दोस्त को, मेरे 2-3 दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ जिंदगी में, मेरे हर सफर में मेरे साथ रहे हैं, अच्छाई में बुराई में हर चीज में रहते हैं। तो ऐसे ही इमोशनली बड़ा उमड़ के आ जाता नहीं, दोस्ती कभी कभी उमड़ के आती है। तो मेरा दोस्त है मनीष मित्तल, बॉम्बे में रहता है। राइट। दोस्त क्या, भाई है यार। जिसकी दोस्ती आपकी 30 साल की हो जाए तो भाई ही बन जाता है। 7 साल से ज्यादा जो दोस्ती वो तो हम लोग 30-35 साल वाले हैं, वो तो भाई ही है मेरा, समझो। ऐसे 3-4 हैं मेरे माशाल्लाह से। तो हमने उसको फ़ोन किया, यहाँ का 9:30-10 बजा रहा होगा, यानी हिंदुस्तान का 11-11:30 होगा। फ़ोन किया, कहने हाँ बोल बे, ऐसे ही जैसे होता है। हमने कहा भाई बस थैंक यू करने के लिए फ़ोन किया, तुमने बहुत किया है। कहने कहा वे दारू पीने लगे क्या तुम? रुको फ़ोन रखो, सुबह फ़ोन करना, हम सोने जा रहे हैं। You know, so you have that type bond also, right. where you do not need to express yourself. No filters. Filters. You don't need to pretend. No. Regret रहा है एक जगह यार। कहाँ पे? एक बार ट्रेन से हम लोग जा रहे थे दिल्ली। अच्छा।
कहाँ से दिल्ली जा रहे थे? इलाहाबाद से दिल्ली अच्छा, जा रहे थे। इलाहाबाद से। सामने वाली सीट पे बड़ी खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। हाँ, उससे हमने कुछ देर बात भी की, राइट। लेकिन उसका नंबर नहीं लिया हमने, ना दिया अपना। ओह, जानते हो क्यों? क्यों? बगल में उसका मियाँ बैठा था। मजाक किसी कर रहा हूँ। बहाने से मियाँ से ही मांग लेते नंबर। अरे छोड़ो यार। तो वो कसक है? नहीं या नहीं, वो तो है? मस्ती की बात कर रहे हैं, अच्छा, just नेक्स्ट to टाइम bring कोई और that- दिखे तो मांग लीजिएगा नहीं नंबर। नहीं, just for a lighter note I said this thing. No, but I wanted to ask you. I mean, mashallah, say you've achieved so much in life. You've seen a lot of layers of life. चाहे वो joy हो, चाहे वो struggle हो, fulfilling relationships हो. You've just described that you've had or you have amazing friends who Yes. have proven to be your rock solid support, your guides, your mentors. चाहे जो भी level हम बोले यहाँ पे. But coming back to second chances, ऐसा कोई एक वाकया है या स्टोरी है जहाँ पे कि आपको लगा हो कि सेकेंड चांस यहाँ पे तो मैं डिजर्व करता हूँ. एवरीवन डिजर्व्स सेकेंड चांस इन लाइफ, बट दैट मेड यू थिंक और रीथिंक दैट क्यों नहीं मिल रहा है मुझे. आई डिजर्व इट, आई रियली डिजर्व इट. इस क्वेश्चन में दूसरे तरह से जवाब देता हूँ. बिल्कुल. हाँ? जब हम लोग पैदा होते हैं तो उम्मीद पे ही पैदा होते हैं. क्यों मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये नहीं मालूम, पर ये जरूर मालूम होता है कि मिलेगा. राइट. ठीक है. यस, कई बार लगे अगर वो चीज़ खत्म हो जाए तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहे ना. वही तो हर दिन लड़ने को देता है. हम लोग तो सब लोग जितने भी लोग हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्समैन की बात करता हूँ, कोई भी सेल्समैन, दुनिया का सेल्समैन, एक दिस इज द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड which is unemployed every day in the morning. True. Very well put. Right? They are unemployed. Every day they go, Yeah. they look for a new business, or they service their own customers Right. to get the sales, They try to retain. Yeah. to retain the customers. और वो एक महीने के राजा होते हैं. आज उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया, इस महीने वो तो राजा बन गए सेल्स में. तो साइकिल फिर जीरो हो जाती फिर है. अगले महीने जैसी पहली तारीख आई वो जीरो पे आ गया, फिर वो Right. कुत्ता हमारा जैसा कुत्ता बन गया. तो क्या होता है? एंटिसिपेशन होता है, एक उम्मीद होती है कि नहीं यार कर लेंगे. तो यस, आई फील लाइक एवरीबडी जो भी काम लगा रहेगा, हरकत में बरकत है, काम करते रहो, बिल्कुल आएगा ही आएगा सेकंड चांस. Amazing. हम लोग के गांव की तरफ एक कहावत है, इस प्योर हिंदी टाइप ऑफ कहावत, कि लगा रहे व्यापारी और ढुका रहे चोर हमेशा कामयाब होता है. मीन जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन, जी. वो कीप्स ऑन डूइंग वर्क, और ढुका रहे चोर, जो चोर मौके की तलाश में लगा रहे, ही लुक्स फॉर द मौका, Right. वो हमेशा कामयाब होता है. कामयाब रहता है. तो व्यापारी या कोई भी बिजनेस है या पढ़ाई भी, आप देख लो कि बंदे कितने नीट का एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विसेज का देते हैं, दे कीप ऑन ट्राइंग फॉर 4 years 5 years, they do that. Absolutely. And there are a lot of web series these days. Yeah, we yeah, see, yeah, you yeah, know, yeah. they have turned out to be an inspiration for बिल्कुल many. बिल्कुल. सो ये तो हम लोग खैर ये मेरे ख्याल से ये तो जीन्स लेके पैदा होते हैं हम लोग. सेकंड चांस का, थर्ड चांस का, फोर्थ चांस का. And it develops the resilience, Oh isn't yes, it? and it develop the resilience if you have a good surrounding, especially with your friends and family. अगर वो मिल जाती है ना तो आपको ताकत मिल जाती है. जैसे हमारे साथ सबसे बड़ा रहा है कि मेरी वाइफ जो रही है, oh she has been rock solid to me. Amazing. हाँ, मेरे दोस्त रहे 5-6 दोस्त ऐसे हैं ना कि यार वो तो मतलब उनको लगता था मतलब वो खड़े हैं तो आप दुनिया जीत लो. ठीक है, आपके भाई होते हैं. हाँ, कहते हैं भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं है, भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है. Absolutely. हाँ, और वही अगर भाई आपके बगल में खड़ा हो जाए कि चलो मैं हूँ, कोई बात नहीं, चलो मैं देखता हूँ, खत्म हो गई बात आपकी. You can win the world, or you can do anything. You anything. can fail and rise again. You can. मेरे दोस्त थे जब आई वाज इनटू डीप ट्रबल, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि यार तुम यहाँ पे गलत हो यार, you have done this thing wrong. Some decisions. But this is not a time to discuss that. Let's just take you out from that shit first. Right. So let's solve the problem. Let's solve the problem rather than blaming it. तो वो भी दोस्त, उन्होंने कहा कि तुम गलत हो, देखो यार तुम गलत कर रहे हो यहाँ पे, तुमने ये गलत किया. लेकिन वो ब्लेम कंटिन्यू नहीं रहा. वो नहीं, उन्होंने कहा इसको अभी छोड़ते हैं, बाद में पहले अभी देखते हैं या फर्स्ट एड कहाँ पे देना है तुमको. बिल्कुल. वो देखते हैं. Right. तो I've been always blessed with very good people around me, very good friends. Yeah, alhamdulillah, very good. Yes. Any instance in your life that you recall? वैसे तो you're
man of many titles, and you've established yourself really well, ना सिर्फ industry में, digital marketing industry में, but I would say as a human being who comes across, not just comes across, but is very authentic, very humble. और आप जिस तरह से लोगों को feel कराते हैं ना, it's like, I think it is Maya Angelou who said that it's not about the words that you speak to someone, it's not about how you say those words, but it's everything about how you make the other person feel about what you said and how you said it. So anytime, I mean, I have known you for last 6+ years now, and I can proudly say every time I have either met you outside for an event or stepped into your office, I have never felt like an outsider. It's always like homecoming for me. True. So I think we can all learn some lessons, some leadership lessons rather, from your vulnerabilities, from your storytelling style, which is a very important skill. And I think you're exercising that really well by being the BNI president that you are right now, And that's for living up to the role. That's very for a very short period. Yes. No, but it's an experience, and it leaves a mark in many people's minds, even though if it's short. कभी-कभी पूरी जिंदगी काफ़ी नहीं होती है एक इंसान को परखने के लिए, जांचने के लिए या याद रखने के लिए. कभी एक लम्हा भी काफ़ी है वाह, इंसान के साथ. क्या मैडम शायराना आपने बात कर दिया. बिल्कुल सही बात कर रही है. What I feel like, I'll just sum up in one sentence here. The least we can give is the respect to somebody. Is the respect, right? Absolutely. So if you walk into my office, if you are coming to meet me, or if what you are doing, you are spending your time to come to me, right? Absolutely. And in return, what I can give you, I can give that little respect, right? You give us a lot of khana also, which is like, anytime anyone comes here, then I am blessed actually. nobody leaves hungry from your office. But that's I'm blessed. Malab, this is not the right place to say, but I'll tell you one instance about that Yes, later please. on. Not on the Later? Because, later on. I'll But tell come you on, this about- is unfiltered. हाँ? तो हो ही जाए unfiltered बात. मैं कहता हूँ खाना खिलाने वाला बड़ा नहीं होता, खाना खाने वाला बड़ा होता है. वो क्यों? हाँ? वो क्यों? That's a story. Every time I tell, I get a goosebump. From many years, I've been, what I will do. For many years, I tried to go and distribute food every week. Every week. Every week I do that. मतलब ये अनकंडीशनल चल रहा है. It's a ritual that has हाँ रिचुअल बन गया है. तो जब मेरी फैमिली इंडिया वापस चली गई थी ड्यूरिंग माई टफ टाइम, तो मैं ऑर्डर करता था खाना, वही ऑर्डर करता खाना जो मुझे खाना, वही खाना मैं दूसरे को भी करवाता था कि मैं ऑर्डर करूँगा. Wow. तो वो भी ऐसी बात, शाम का टाइम था, बड़ा थका मांदा मैं था. मैंने सोचा यार आज जाके फिर खाना ही बांटना है. Right. I went there. So you took it as a task. As a task, I took it. Yes, I'm doing it. और उसके बाद मैं नीचे खड़ा रहा खाना लेकर के. Around 45 minutes मैं खड़ा रहा. I could not find anybody. The intention. Could not find anybody. I still to give that food, nobody was there to take my food. I can see you getting very emotional recollecting that part. Yes. Right. So it's not weird. So मुझे realize हुआ इस बात को frontless. I went back. I prayed. I said sorry to the creator. It's not me who's feeding. You're making me instrumental. And I went back down. मैं नीचे आया और मेरे जहाँ मैं बिल्डिंग थी उसके बगल में एक सुपरमार्केट बन रहा था. जैसे आया तो वैसे ही मजदूरों की बस आई. और within 30 seconds, without exaggeration बता रहा हूँ, within 30 seconds खाना खत्म. Amazing. नहीं वही, it's a thought, and it is a saying also कि आप बांट तो लोगे या खाना आपके घर से या हाथ से निकलेगा तो सही, बट उसको लेने वाला कोई हो, उसको खाने वाला वही मैं कोई कह रहा है हूँ, खिलाने वाला बड़ा नहीं होता, खाने वाला बड़ा होता है. ये सीख है. उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भैया, खाना आप नहीं खिला रहे हो किसी को. True. उस परवरदिगार ने आपके लिए आज का रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था. आपको यहाँ पे खाना खाना था. बिल्कुल. तो उसने एक जरिया बना दिया आपको. बिल्कुल. और मैं वैसे बहुत सेल्फी आदमी हूँ. अगर परवरदिगार ने यहाँ पे किसी को भेजा है ना खाना खिलाने के लिए, खाना क्या मैं मनाजिर को इसका जरिया बनाता हूँ, तो मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा देता है. माशाल्लाह. वो किसी को उधार नहीं रखता ना.
एब्सोल्युटली 10 गुना तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, हजारों करोड़ों गुना ज्यादा बिल्कुल देता हमारी है। एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा जो हमने ख्वाब एक्सपेक्टेशन ख्याल में अपने भी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है यार, बिल्कुल बिल्कुल अपने कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है। एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ गिविंग कि जब भी मुझे लगता है कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं एंड आई कनेक्ट डीपली टू द डिवाइन सोर्स, कहीं ना कहीं से कोई आइडिया ऐसा आ जाता है और मेरे पास उस टाइम में भी लिमिटेड सोर्स होता है उस चीज़ का, भले ही वो खाना हो, पैसा हो, कुछ भी हो, बट व्हेन आई मेक दैट इंटेंशन टू शेयर इट विद समवन, द ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई। Oh yes, absolutely. कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस But से you've been कोई doing, हेल्प but आ you've been जाती doing this thing a lot. जब ये मुझे याद है शारजा में जब बारिश हुआ का जी टाइम हुआ जी था, जी जी then you were also there. जब लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे जी थे, जी you went with the food and everything distributing, right? I remember And this. it's the intention that counts, not to show something that, I can do this or I'm a part of this and this group. No. It is your individual feeling that you are going to give, and maybe somewhere it's being, noticed that there is a good intent to do good. So true. और जब आप वो कर लेते हो गुड डीड, आई थिंक पीपल follow. Some people, not all, they do get inspired by good actions, and I would say I have taken a lot of inspiration from you, the way you treat people. जब मैं शुरू में अपनी entrepreneurial journey में थी, and you have been one of the guides, हमारा accountability group हो, चाहे जो भी struggles हम लेके आते थे, you always had a very balanced solution to that problem. I'm honored. मुझे तो मालूम भी नहीं, हमारी बीवी तो कहती तुम तो, आज तो हम बता हमारी रहे बेगम हैं कहती तुम किसी को अकल क्या दोगे। हाँ? चलो, वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। The more you are available at a place, the more unseen you become at some but I point think in my time. wife is much more wiser than Wiser. I've seen that. I've met her. She's very wise. And not that you're not wise, but she keeps you grounded, I would say. Oh yes, absolutely. That energy जी, is there, right? I think वो balance होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बात करते हैं आपके थोड़े टफ टाइम की, if you are comfortable sharing any part of that. Absolutely. What was that tough time in a nutshell? Was it because of something external or any decisions that ended up becoming, backfiring? And what lesson did you learn from that phase? मतलब इस पे बात करने चलें तो 2-4 घंटे लग जाएगा, लेकिन Absolutely, I'm sure. तो लोग बोर हो जाएंगे। बट इन अ नटशेल, यस, कुछ गलत डिसीजन तो इंसान से हो ही जाते हैं। गलत डिसीजन ज़्यादातर होते हैं जब हम लोग अपना ये सोचते हैं कि वी कैन चू, क्या कहते हैं, we can bite more than we can, or we can chew more than we can मतलब digest. समझिए ना भाई जो मैं कहना चाह रहा हूँ। We can chew more than we can digest. या तो होता है कि हम बाइट ज़्यादा ले लेते हैं, इतनी मेरी एपेटाइट नहीं होती कि वी आर नॉट एबल टू चू एट दैट टाइम। तो परहैप्स वो किया मैंने शायद, और नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे एक बहुत मेरी लग्जोरियस लाइफ थी, जहाँ पे मेरे हाथ खुले थे, हाँ, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि आपकी फैमिली वापस जाएगी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। आप ये सब चीज़ें नहीं सोचते, सारी चीज़ें, और फिर आपके पास ये वक्त होता है कि आपके पास खाने के पैसे नहीं होते। हाँ, यानी गाड़ी से मैं अगर बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है। तो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि हम लोग अक्सर घर में सदका निकाल के रखते हैं। तो मैंने सदके का पैसा तक इस्तेमाल किया यार, सदके का पैसा निकाल के मैंने जाके पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और निकला हूँ बाहर। तो अब इससे टफ टाइम क्या देख सकते हो। बिल्कुल। हाँ, ये भी टफ टाइम देखा है कि मेरे अपने घर के अंदर मेरे पास आटा लाने का पैसा नहीं था, क्योंकि चावल रखा था तो हम लोगों ने शायद 6 या 7 दिन सिर्फ दाल और चावल खाया है घर में। तो आपको ये सब लड़ाई करने में जो ताकत मिलती है आपकी फैमिली से और आपके दोस्तों से मिलती है। ऑब्वियसली आई विल नॉट गो एंड टेल माय फ्रेंड्स कि मेरे पास आटे का पैसा नहीं है, दाल का पैसा नहीं है, वो नहीं। लेकिन इस मामले में मैं कहूँगा मेरी वाइफ का और मेरे बच्चों का कभी उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। तो आई थिंक दिस इज व्हाट माय वाइफ हैज इनकलकेटेड दैट वैल्यूज इन देम। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका कि उस
सख्त लम्हे में उसने कहा, मतलब जैसे था वैसे मैनेज किया चीज़ों को, कोई डिमांडिंग नहीं रही, तो वो भी वक्त देखा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में सक्सेस तो आ जाती है, लग्जरी आ जाती है, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं हम लोग, एंड वी स्टार्ट sort of forgetting our roots or the humility that is expected of us. तो ऐसा हुआ कभी तकब्बुर? हाँ, क्यों नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। उसके मैं इंसिडेंट बता दूँ, लेकिन आपके इसके पहले क्वेश्चन का एक जवाब और दे दूँ, Right. वो पार्ट रह गया। आपने मुझसे पूछा क्या मेरी लर्निंग थी। Lessons, yes. तो लर्निंग दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, फैमिली से बड़ा कोई नहीं है आपके पास। फैमिली जो आपके 2-4 करीबी दोस्त होते हैं ना, जी। उनसे बड़ा कोई नहीं है आपके पास। True. और जितनी जो भीड़ होती है ना, वो तो ऐसे गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा हाँ। आपको। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई हु इज योर रियल वन। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ज़िंदगी की रही है, और वो रही है कि पीपल से दैट दे शुड नो व्हाट टू डू, आई से यू शुड नो व्हाट नॉट टू डू। Right. You should have a list. These are things I'm not going to do in your life. I think that will make you perfect. अब आपका सेकंड क्वेश्चन, अभी क्या क्वेश्चन आपने पूछा? सेकंड क्वेश्चन ये था कि तकब्बुर हुआ कभी, ईगो? हाँ, कई बार हुआ। उसका मैं आपको कहानी बताता हूँ। हैंडलिंग सक्सेस। हाँ, बिल्कुल हुआ भाई साहब। हाँ, वो हुआ था, वो बहुत जल्दी टूट भी गया वो। एक ज़माने में शारजा से दुबई was a jam-packed traffic. I was doing very well. I was living in a very good place in Dubai. तो मेरा एक जान पहचान का, उस अर्ली डेज में आदमी को जल्दी से लाइसेंस नहीं मिलता, तो आई वॉज वेरी लकी टू हैव लाइसेंस। तो उसने कहा, यार मेरी वाइफ आ रही है, साथ में चलोगे क्या यार, शारजा एयरपोर्ट पे है। हमने कहा ठीक है। तो बोले ड्राइविंग लाइसेंस की बात। हाँ। तो बोले 7 बजे सुबह आ रही, तो हमने ठीक है चलते हैं लेने। तो हमने वी वेंट अगेंस्ट द ट्रैफिक। हाँ, तो डनाटा से मुझे शारजा की भीड़ दिखाई देने लगी। राइट। और भाई साहब भीड़ कंटिन्यूस लग रहा था। और मैंने कहा, यार हमें इमरान, ये शारजा में लोग कैसे रहते हैं, चलिए यहाँ तो लाइफ जो है कि कीड़े मकोड़ी वाली लाइफ है। ओके। एंड एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद आई वाज इन शारजा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि आई वांटेड टू लीव दुबई, जैसे आई डोंट वांट टू स्टे हियर बिकॉज आई लेफ्ट माय अर्लियर कंपनी, लॉट ऑफ whispering was happening, so I wanted to be away because I wanted to focus on my business. Right. So I left Dubai and I went to Sharjah. That is also a story how I went. मैंने जहाँ पे मकान में रहने लगा था, वहाँ पे मैंने मकान भी नहीं देखा था। Over the phone I confirmed, I said okay ठीक है, confirm पैसा लो, and I'm moving out. Right. तो बिल्कुल होता है, एहसास हुआ। Did you disappoint any of your family members or friends at that time कि आपके decisions की वजह से उनको consequence face करना पड़ा? बिल्कुल हुए होंगे, क्यों नहीं होंगे। गेहूं के साथ तो क्या कहते हैं, गेहूं के साथ घुन के साथ तो गेहूं भी पिसता। बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं होगा। हम दूध के धुले थोड़ी नहीं कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ करेंगे और अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने खाली टेंशन हम ले लेंगे और बाकी सबको अच्छा रखेंगे। नहीं, बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल परेशान किया है। अरे जब पैसे की परेशानी हो रही थी हमको, तो मैंने सबसे पैसा मांगा, अपने दोस्तों से पैसा मांगा, अपने अब्बा से मांगा, बहन से मांगा, भाई से मांगा, किसी से गिड़गिड़ा के मांगा, किसी को झूठ बोल के मांगा, किसी को उस वादे को भी दिया कि 1 हफ्ते में दे देंगे जल्दी। तो एवरीबडी वाज थिंकिंग आई एम डूइंग वेरी वेल, नोबडी वाज नोइंग दैट यस आई हैव गॉन थ्रू सम फेज। सो एवरीबडी गिव मी। अब मुझे मालूम था मैं 1 हफ्ते में वापस नहीं कर पाऊंगा पैसा, लेकिन मांगा मुझे। बट टच वुड आई एम एबल टू रीपे बैक ऑलमोस्ट एवरीवन नाउ। अमेजिंग। पैसा तो रीपे कर लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं रीपे कर पाऊंगा कभी भी। नहीं, वो तो है, दैट इज समथिंग दैट यू लिव बाय, दैट एक्सपीरियंस। ट्रू। और कभी मौका आपको भी मिले वो फेवर, अल्लाह ना करे कभी मिले ऐसा करने का, अल्लाह ना करे मैं कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं उनकी हेल्प करूं ना उस तरह से, बट इन अ एहसान का बदला एहसान होता है। बिल्कुल इन अ डिफरेंट वे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप्स आर अबाउट एक्सचेंज, चाहे थॉट्स का हो, फीलिंग्स का हो, चाहे फाइनेंसेस का हो, या कोई भी एक्सपेक्टेशन का हो। वी लिव बाय फुलफिलिंग आवर नीड्स इन अ रिलेशनशिप एज वेल। True. Right? I think it's been a very candid conversation with you,
And this is not really the Manazir I know of when it comes to business genre. You come across as a very different personality there, but I'm glad that we got a chance to hear these stories, hear the vulnerability in your voice, feel the emotion behind that voice. And I really, really appreciate that authenticity that you brought to the show today, and honesty, because that's one of the things that I value personally in my life as well. And I think somewhere deep down, we were able to exchange those values. So thank you very much. Thank you so much. You dig deep inside me. And you took out everything. आप वो कहते हैं ना गोताखार, वो जो अंदर जाके मोती निकाल के लाता है. तो आई डोंट नो मोती है कि नहीं, बट यस, बहुत सी इसमें बहुत सी क्या काफ़ी चीज़ें ऐसी जो कोई दुनिया नहीं जानती, बट यू टुक इट वेरी इजली. Yeah, I think it's the comfort level that perhaps that we were able to create. जी. And you felt comfortable, so you opened up a little bit more, and I felt comfortable to ask, because if you were hesitant to give out any bit of that vulnerable side of you, then I would have stopped, right? So true. So I know where to draw a line, and you would know where to stop it. So I really appreciate that. नहीं, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए आपका कि आपने मुझे इतना कंफर्ट दिया कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैंने शायद किसी से शेयर नहीं किया होगा या एक दो लोगों से शेयर किया होगा. उस चीज़ को आप बाहर निकल आए तो यू फील ऑलवेज इलेटेड, यू फील लाइट. True. And you have vented out, absolutely. And the feeling, how do you feel now? I wanted to ask you, because you've let out a lot. Perhaps you haven't said that in front of the camera so much. Obviously, no. I've never have said these things. Yeah. But I felt good, yes. Yeah. Feeling good. Very good. Didn't feel like that is this. I've spoken so much and covered so much on this. Yeah, I think it's by far, even me, it's the most informal I have been on an interview with anyone. It didn't feel like an interview. It was like, I didn't know what my notes were. It was casually. So if you have to leave our audience, and especially the youth, I would say, because you shared a lot of stories from your youth time and from the time you started working, and some stories from your mentors, your family, what would you say and sum it up in a message that you would want to give either to the present generation or to the future ones? I'm still learning. मैं इतना बड़ा ज्ञानी बाबा नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ, but yes, what I will say कि there is no shortcut, first of all, and that everybody says. And second thing which I believe is that there is no substitute of hard work and integrity. When you say integrity, it with your work, with your colleagues, with your staff, with your family, with your friend. With yourself. With yourself. How true are you to yes. yourself? Right? You start with yourself only. Absolutely. For everything. If you're true to yourself, you're true to everybody. Right? So there's no substitute, boss. You have to work hard. You have to be truthful. Thank you. Thank you very much. And I'm sure our audience, any age group who relates to these stories, and I'm sure they would have taken a lot of takeaways, a lot of learnings from today's episode. हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही हमें सराहते रहिए through the YouTube channel of Infoban and through our stories as well. Next time, we'll be with you again with a different story, with a different learning, with deep dived questions. Thank you very much. Have a great evening. Thank you, Rashid. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Pleasure.